Hello dear students and welcome to my channel CAT Experts. I hope you all are doing good. This is going to be session number 5 of our daily dose series. I would like to appreciate your decision of writing CAT 2020. So you have make your mind to appear for CAT 2020. You must be aware CAT date is out, that is November 29, 2020. And registration dates are also open now. So today we will discuss how to fill CAT 2020 form. I will tell you step-by-step procedure for CAT 2020 registration. Right? So let's start. So before you start your registration, you must keep some of the documents ready with you. Which are those documents or list of documents is there in front of you. The first thing that you will be needing is scanned copy of your photograph. It should be a scanned copy. Mobile copy generally आपने नहीं लेनी चाहिए. फोटो से लिया हुआ मोबाइल से लिया हुआ फोटो नहीं चलेगा. It should be in JPEG or JPG format. The maximum allowed file size is 1 MB. The second document that you should keep ready is the scanned copy of your signature. It should be in PDF format and the maximum size can be 300 KB. Right? Make sure format should match and the maximum size should not exceed 1 MB for photograph and 300 KB for signature. The third thing, keep the mark sheets of 10th, 12th and your graduation ready. It is generally suggested to write the total marks, scored marks and the achieve percentages for 10th, 12th and graduation. Right? That will help you to fill the information quickly. If you belong to any category, it is suggested to keep card certificate with you so that whenever there is a need to enter the serial number or merit number of your caste certificate, that can be done without any hassle. Right? Now to start your registration procedure, we have to go to iimcat.ac.in. Now I will take you to this link. So as you can see, this is the official link for your registration, which is iimcat.ac.in, and this is the homepage that you can see on your screen. Now, these are some important dates जो आपने नोट करके रखने चाहिए. CAT का registration procedure start हो चुका है 5th August 2020 को. It will last till September 16, 2020. स्टूडेंट जनरली कमिट अ मिस्टेक, अरे यार अभी तो काफी दिन बचे हुए हैं तो हम आकर लास्ट में करेंगे. बट डू नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग. इट इज सजेस्टेड टू गेट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एज अर्ली एज पॉसिबल. यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम October 28, 2020. And this is going to be your exam day, जो पहले भी आपको बता चुका हूँ. This is going to be the last Sunday of the November month and the date is 29. So now on your right hand side, you can see 3 tabs. First one is new candidate registration. This is going to be your step number 1. सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जहां आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी. And once you are done with your registration procedure, आपको एक SMS आएगा और मेल भी आएगा जिसमें आपका ID और पासवर्ड मेंशन होगा. It is suggested to store your SMS and mail securely so that जब भी आपको ID कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट चेक करना है, you can do that with that ID and password. So जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो जाएगा, फिर आपको उस आईडी और पासवर्ड के साथ
लॉगिन करना है। अब मैं थोड़ी देर में आपको लॉगिन करके वो पेज पे ले चलूंगा और कैसे प्रोसीजर कंप्लीट करनी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड दिस इज फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, इसका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आज का हमारा जो फोकस होगा वो हाउ टू गेट रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट के लिए, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद लॉगिन कैसे करना है ये आज हम डिस्कस करें। ठीक है, चलिए अभी हम इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हमारा पेज जो कि ओपन हो रहा है। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आप लोगों ने देखा यहां पर रिकमेंडेड ब्राउजर की यहां बात हो रही है। सो मेक श्योर ये तीन में से कोई एक ब्राउजर आपका होगा। फील्ड मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी, ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो हमको पता होता है, राइट? सो जस्ट क्लोज इट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट और लेट्स सी द होम पेज रजिस्ट्रेशन का। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आपको पूछा है नेम ऑफ द कैंडिडेट और ये स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ फिल करेंगे। Note is given, candidate name should be entered exactly as it appears in 10th SSC certificate. आपके 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी या फिर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होगा उसमें सेम नाम होता है, वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पे आप क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक, इस पे आप क्लिक करिए, ईयर आ गया। आप सबसे पहले जो भी आपका बर्थ ईयर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं 2004 सिलेक्ट कर लिया फॉर मान के चलते हैं, I have selected 2004, राइट? मंथ में सिलेक्ट कर लेता हूं मई, और उसके बाद जो भी आपकी बर्थ डेट है वो यहाँ आ जाएगी। ईमेल एड्रेस में कोई गलती ना करिए क्योंकि उसी में आपका आईडी और पासवर्ड आने वाला है। जो आईडी यहाँ लिखा हुआ है उसको रिकन्फर्म करने के लिए यहाँ एंटर करिए। सिलेक्ट योर कंट्री, आप देखेंगे इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, इंडिया एंड अदर्स। सो मैं इंडिया पे क्लिक करता हूं। Put your mobile number here and confirm that mobile number. अब ये इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको करना है ओटीपी जनरेट। ओटीपी जनरेट जब आप करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद तो आपको एक नए विंडो पे कैप्चा कोड मिलेगा, उसको आप एंटर करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वैलिडेट हो जाएगा। वंस यू आर डन विद द मोबाइल वैलिडेशन प्रोसेस, नीचे आप देखेंगे एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर से एक कैप्चा कोड आ रहा है, इसको आप यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है एंड सिंपली सबमिट बटन। अब मैं सबमिट करके कुछ मुझे यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, प्लीज एंटर नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली यहाँ आपको मैसेज आएगा। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली फिल कर दी है तो आई एग्री के बाद जब आप सबमिट करोगे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है एंड यू शुड रिसीव एन ईमेल जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेप नंबर 1 विच इज वेरी मच इजी। अब मैं फिर से चलता हूं अब हमारे होम पेज पर। जैसा मैंने बताया था, जैसे ही आपकी प्रोसीजर हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, फिर आपको जाना है रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन के टैब पर। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, लेट मी डू इट फॉर यू। ये मैंने ओपन कर दिया यहां से एप्लीकेंट्स लॉगिन। अब आपका जो आईडी पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ एंटर करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक लिंक पर वो डाल के रखा हुआ है, एज यू कैन सी। जैसे ही मैंने लॉगिन किया ये लिंक मुझे आ गई, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। सेव करने बोल रहा है, दैट इज ओके। इसको मैंने क्लोज कर दिया। सो दिस इज द होम पेज आफ्टर योर लॉगिन। Simply click go to application form and you will be directed to the starting procedure. Open हो रहा है, just give me some time.
फिर से यहां पर आप देखेंगे ब्राउजर का आपके सामने रिकमेंडेशन आ रहा है। इस टैब को हम क्लोज कर देंगे। सो पॉपअप विंडो क्लोज करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे some tabs are there: personal details, academics, work experience, program, test city, and finally the payment, right? So after every phase you have to save it and you have to move to the next tab, right? अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, just go to the personal detail। यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको दिखाई दे रहा है, फादर्स नेम इज देयर, fathers or guardians name is there, mothers or guardians name is there। So after writing your name, write father's or guardian's name over here. Thereafter mother name is compulsory, spouse name if you are married, enter your husband or wife name over here। पर्सनल अदर पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर, जो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान यूज करी थी। कैंडिडेट जेंडर मेल फीमेल जो भी है, you have to just select it। nationality I will select it as Indian। Aadhaar card number, it is not mandatory, right? If you wish to enter it you can do so। your category, if it is general click general, otherwise EWS, NC, OBC, SC or ST, select the general category। if you belong to the person with disabilities select yes। कुछ डिटेल यहाँ मांगे जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। if you do not belong to person with disability simply click no। so this column is for your communication address। you have to just complete address line 1, 2 and 3। thereafter select your country, I will select it as India। your state or union territory, I will select it as Maharashtra। डिस्ट्रिक्ट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आई विल सिलेक्ट इट एज अमरावती। टाउन सिटी वॉट एवर इट मे बी यू हैव टू एंटर इट ओवर हियर। पिन कोड में बिल्कुल आप गलती मत करिए, जो भी पिन कोड है इसको प्रॉपरली फिल करिए। योर एड्रेस, if you want to put alternate email address then this option is given to you। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस भी दूसरा कोई एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको डालने हैं emergency contact detail। in case people are not able to contact you on your number then they will contact you on the emergency mobile number। यहाँ आप आपके फादर मदर या किसी भी गार्डियन का नंबर डाल सकते हैं। सो नंबर डालने के बाद ये नंबर के साथ आपका रिलेशन क्या है, जिनका भी ये नंबर है उनके साथ रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। Now the next part is to upload documents। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करके आपको वो बता देता हूँ। Please upload your recent passport size photograph। The photograph should not be more than 6 months old, right? The dimension of the photograph should be, dimensions यहाँ दिए हुए हैं। Maximum file size जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 MB। फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो JPEG और JPG होना चाहिए। Please upload the same photograph which you will affix on the admit card on the day of the test। देखिए आप जो भी फोटो यहाँ अपलोड करने वाले हो वही फोटो आपको कैट एग्जाम के दौरान फॉर्म पे भी पेस्ट करना होगा। सो मेक श्योर जो भी फोटो आप अपलोड करोगे उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, राइट? यहाँ पर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। या देखिए जैसा ये फोटोग्राफ यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज द रीजन? नॉट इनफ कॉन्ट्रास्ट, राइट? उसी तरह हर फोटोग्राफ में आप देखेंगे व्हाइट कलर बैकग्राउंड है, सो दैट इज व्हाट जनरली रिकमेंडेड टू यू। इस फोटो में ब्लू बैकग्राउंड की वजह से ये रिजेक्ट हो चुका है, ये सिलेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इम्प्रॉपर लाइटिंग की वजह से ये फोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं हो पाया, दिस इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पर फेस के ऊपर आप देखेंगे हेयर आ रहे हैं, सो दिस इज रिजेक्टेड वेयर एज दिस इज एक्सेप्टेड। सो फोटोग्राफ्स बिल्कुल आप प्रॉपरली लेकर उसको अपलोड करिएगा। नाउ इफ यू क्लिक हियर टू अपलोड, आपके सामने फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए लिंक आ जाएगी, उसी तरह सिग्नेचर की। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फोटोग्राफ ओवर हियर,
क्लोज इट। सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों ही यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप होने के बाद आप इसको क्लोज करना है। वंस यू आर डन विद दिस, सेव एंड कंटिन्यू टू मूव टू द नेक्स्ट टैब। सो अभी हम आ चुके हैं सेकेंड टैब पे, राइट, विच इज एकेडमिक्स। पहला जो आपको टैब दिख रहा है दैट इज फॉर एसएससी और 10th डिटेल्स। आपका जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। सीबीएसई है तो अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपकी मार्कशीट पे आपका 10th कौन से मंथ में कंप्लीट हुआ और ईयर वो दिया होगा, वो डिटेल आपको फिल करने हैं, मंथ एंड ईयर। thereafter maximum marks of that particular board and marks scored by you and you have to enter the percentages। मैंने आपको बताया था ये सारे डिटेल्स आप रेडी रखेंगे तो you are not going to waste any time over here। उसी तरह के डिटेल्स आपको 12th के लिए एंटर करने हैं, 12th और डिप्लोमा। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा विल बी इक्विवेलेंट टू योर 10th। मैं 12th में भी यहाँ क्लिक कर देता हूँ, वही आ जाएगा। फिर से बोर्ड नेम आ जाएगा आपका, लेट मी सिलेक्ट एनी बोर्ड। सीबीएसई मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर से मंथ एंड ईयर पूछेगा कंप्लीशन का, डिसिप्लिन पूछेगा आर्ट कॉमर्स साइंस अदर्स, लेट मी सिलेक्ट साइंस। maximum marks, total marks obtained and the aggregate percentages, this is what you have to fill in। फिर ये आ रहे हैं बैचलर्स डिग्री के डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, इफ यस इसको क्लिक करिए, ये डिटेल्स आपको फिल करना है। इफ नो देन व्हाट विल हैपन, then you have to answer the second question, have you completed bachelor's degree, yes or no। let me select yes। क्या क्या डिटेल्स आ रहे हैं, टोटल डिग्री ऑफ द ड्यूरेशन, इफ इट इज इंजीनियरिंग डिग्री 4 इयर्स आ जाएगा। मार्क्स परसेंटेज अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनियन टेरिटरी जो भी आपका है, यूनिवर्सिटी नेम, नेम ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, डिग्री नेम, डिसिप्लिन, मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कमिटमेंट, मंथ और ईयर ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद अगर आपने और भी कोई बैचलर्स डिग्री की हुई है देन जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब और सेकेंड डिग्री के डिटेल आप उसी तरह यहां एंटर कर सकते हो। इफ इट इज नॉट डन सिलेक्ट दिस। हो सकता है किसी ने आप में से प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी किया होगा, अगर किया हुआ है तो क्लिक ऑन दिस। मैं यस पे क्लिक कर दिया है। You will get 3 options, CA, ICWA, CS। If somebody have completed or appearing for CA professional course के लिए गए हुए, तो click on this tab, in progress और completed, जो भी डिटेल है अगर completed है तो इस पे आप टिक करेंगे। उसके जो भी डिटेल है आपको यहाँ fill in करने हैं and simply save and continue। So this is all about your second tab, that is academics। फिर हम आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जो भी इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस है उसको आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस इज इन द बैंकिंग सर्विसेज। स्टार्ट आपका जॉब कब हुआ था वो डेट आपको यहाँ लिखनी है, एंड कब हुआ वो लिखना है आपको, राइट। मान के चलो अभी भी आप उस जॉब में कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, enter your work experience as on July 31st 2020। तो एक्सपीरियंस जब आप एंटर करोगे तो यहाँ एंड डेट आपकी आएगी जुलाई 31 2020। लेट मी डू इट फॉर यू। मैं कोई भी एक रैंडम डेट ले लेता हूँ 2019 की। लेट मी सिलेक्ट द ईयर फर्स्ट, 2019 जनवरी में बात करता हूँ 8 से, ठीक है। और एंड डेट में लेता हूँ 31st ऑफ जुलाई 2020। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस इन डेज यहाँ पर आ गया। अगर इस दौरान आपका 1 या 2 महीने का कुछ ब्रेक है तो वो बिल्कुल आप यहाँ एंटर करिए। जिस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो इसको क्लिक करके वो डिटेल आप डालेंगे, फिर से डेज में एक्सपीरियंस आ जाएगा। और इसी तरह जब आप कंटिन्यू करोगे यू विल फाइंड हियर द टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन डेज। इट्स वेरी इजी, राइट। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम का एक्सपीरियंस इनमें नहीं दिख रहा है आपको देन सिलेक्ट अदर्स और उसमें जो भी डिटेल्स है आप एंटर कर दीजिए। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू एंड वी शुड बी रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट टैब, दैट इज प्रोग्राम्स।
अब प्रोग्राम्स में जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपने सिलेक्ट ऑल कर देना चाहिए। इसमें बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, पीजीपी आएगा, एफएपीएम आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए आएगा, देयर आफ्टर पीएचडी प्रोग्राम्स विल बी देयर, right? So if you are not clear with which program you have to go for, my sincere suggestion is select all. बट आपको पता है कि आपको पीएचडी नहीं करनी है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए आपको नहीं जाना है, तो डिसिलेक्ट दोज वैल्यूज। बट जनरली सजेशन यही होता है कि सिलेक्ट ऑल करिए। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपको सभी प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस देना है। फर्स्ट सिटी मान लो आपने सिलेक्ट कर ली मुंबई, तो सेकेंड सिटी शायद मुंबई आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? सेकेंड सिटी जो आप सिलेक्ट करोगे दैट इज गोइंग टू बी बैंगलोर। इसी तरह सभी प्रोग्राम्स के लिए आपको सिटी प्रेफरेंस 1 और 2 का देना है। अगेन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एक नीचे टैब मिलेगा, अगेन सेव एंड कंटिन्यू। इसको क्लिक करेंगे, आपका इस पेज का इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ऐप की तरफ। लेट्स सी, वो आ रहा है टेस्ट सिटी के लिए। टेस्ट सिटी में इस बार 6 ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रेफरेंस सिटी 1, यू कैन पुट अलवार। जो भी जहां आपका लिविंग सिटी है, जो भी आपका, उसके आसपास की ही सिटी आपने एंटर करनी चाहिए, सो दैट इस ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम बच पाए। So whatever is your city of living, try to give the preference near to that particular city. ये 6 प्रेफरेंस मैं रैंडमली इस तरह दे दूंगा। रैंडमली आई मीन जो भी आपके सिटी के आसपास है वो 6 प्रेफरेंस देने के बाद अगेन यू हैव टू प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट सिटी। जैसे ही आप कोई सेम सिटी करोगे तो इस तरह का पॉपअप विंडो आ जाएगा। सो सिलेक्ट एनी अदर सिटी, मैं इसको आगरा कर लेता हूं, सेव एंड कंटिन्यू। तो इस पेज का इंफॉर्मेशन आपका सेव हो जाएगा। लास्ट टैब इज गोइंग टू बी फॉर द पेमेंट। सिंस आई बिलोंग टू दी जनरल कैटेगरी, पेमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 2000 का। पेमेंट डिटेल्स, उसमें टैक्सेस एंड ऑल, इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, राइट? यू कैन सिलेक्ट द पेमेंट मोड, बिल डेस्क और पीयू। कैप्चा कोड एंटर करिए, सिलेक्ट दिस डिक्लेरेशन बॉक्स, अग्री पे क्लिक करिए एंड सबमिट, राइट? सबमिट के पहले यू कैन प्रीव्यू योर फॉर्म, वो करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यू आर गेट रेडी और योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। सो गाइस, this is everything about step by step that registration procedure. Get it done as early as possible. Thank you very much for watching this video. See you tomorrow with Daily Dose series session number 6. Thank you very much.